Hello everyone, welcome to Maths Online Class Mathematics by Manish Singh. Today I will be explaining and solving the exercise 6D, which is the simplifications. So you know how we can solve simplification? Yes, because you have already studied in previous classes simplification rule. And what was the rule there? There are BODMAS. We can solve the simplify by BODMAS rule. B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. This is the order of the simplify. Understood? Means firstly we open the bracket, or first we solve the brackets, then off, and off means off means multiplication and then division, and D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction. Meaning कि when we solve the simplify, then you follow this order. Means if there are any bracket, so first we solve the brackets. And how many types brackets are there? There are 4 types bracket. Which one? Bracket, small bracket, curly bracket, and square bracket, and one bracket also there are bar bracket. So students, when we solve the questions or algebraic expression as simplify, so we follow this rule, and then we can solve easily each and every questions. So look here how we can solve this type questions, but this is a very easy questions. What is here given? 5x plus 3x minus 7. And listen, look here, what is given here? Here is given 3x minus 7 in the bracket. So just simply we can open the bracket and we can solve according to the algebraic rule. 5x, open the bracket, bracket means multiplication, and what is here? Bracket means होता क्या है? Multiplication, और multiplication ये क्या है? यहाँ क्या है? 1. Addition है, इससे multiply होगा 3x and now minus 7. Okay, understood? And then फिर क्या हो जाएगा आपको 5x 3x minus 7. अब यहां देखो बच्चों, ये क्या है? अब 5x 3x and minus 7. So this is the algebraic expression, and algebraic expression totally depend on the how we can solve the addition and subtraction. Alike terms means we can solve only the like terms. So, and which one is the like terms? Which have same variables. Understood? And which one are the same variables here? 5x and 3x both have a x variable. These are the same, so we can easily add 5x plus 3x will be 8x and then minus 7. And listen, minus 7 8x na subtract nahi kar dena, because these are unlike terms. So we cannot add and subtract the unlike terms, then answer will be 8 minus 7x. Now second is a 4t plus, and this is a big bracket, you can say the square bracket, minus a small bracket 2t minus 4, bracket close, and then small square bracket close. And you know what is the order? First we break the small bracket, पहले क्या होगा? Small bracket solve होगा, फिर this is a curly bracket, and now this is the square bracket. What is here? A small bracket. So firstly we solve the small bracket, and you know how we can solve? All the brackets and numbers will be right same, and 3 minus, open the bracket. Bracket means multiplication. When opening the bracket, then bracket and sign are and numbers are multiply to each other. क्या होगा? जब आप ओपनिंग कर रहे हो, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हो, तो क्या होगा? जो नंबर्स या फिर साइन है वो क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे बच्चों. ठीक है, बात समझ में आई? ये कैसे हो जाएगा? ये माइनस 2t हो जाएगा. ठीक, अब ये माइनस माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस. ओके, अब ये ब्रैकेट हो गया किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट में. ये स्मॉल ब्रैकेट क्लियर हो गया. नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर? 4t. ओपन दिस. So firstly we solve the bracket, and what is here? 3 and 4. 3 and 4, देखो 3 है और 4 है, दोनों क्या है? पॉजिटिव है, दोनों सेम टर्म है, मीन्स लाइक टर्म है,
दोनों कांस्टेंट है, बोथ आर कांस्टेंट, बोथ आर लाइक टर्म्स, easily we can add, and when we add then we get what? 7 minus 2t. Okay, open the bracket, 4t plus 7 minus 2t. Okay बच्चों देखो अब क्या है, 2t and 4t both are same variables, so easily we can solve 4t, this is minus 2t, subtract, now we get the 2t and plus 7. This is the answer. You can pause the video and note down the questions. Understood? So now question number 3, minus 49a square minus 5a square. This is a different type, थोड़ा सा different है इससे. बस आपको ये देखना है कि ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे सो आप मल्टीप्लाई करोगे साइन और नंबर दोनों को. बात समझ आई? अगर यहां नंबर होता तो नंबर भी मल्टीप्लाई होता, लेकिन यहां नंबर है नहीं, तो सिर्फ क्या मल्टीप्लाई होगा? साइन. एंड नाउ अब ये हो गया माइनस 49, लेकिन जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस ए स्क्वायर, एंड नाउ 5a स्क्वायर, एंड देन व्हाट? अब देखो, अब आप हमेशा पहले ना अलजेब्रिक में जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात आएगी तो हमेशा आप खोजा करो. क्या खोजोगे आप? लाइक टर्म्स. व्हाट? लाइक टर्म्स. एंड विच मीन्स लाइक टर्म्स बच्चों? विच मीन्स लाइक टर्म्स विच हैव द सेम वेरिएबल्स इज नोन एज लाइक टर्म्स. विच टर्म्स और विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैव द सेम वेरिएबल इज नोन एज अ लाइक टर्म्स. ए स्क्वायर. नंबर्स कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है? नंबर्स डिफरेंट हो काम चल जाएगा, लेकिन वेरिएबल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तब वो टर्म क्या बन जाता है? लाइक टर्म बन जाता है. अब ये दोनों टर्म सेम है, सो दिस इज द प्लस, दिस इज द माइनस. कीप इन माइंड एवरीवेयर व्हाट? इंटीजर्स रूल. अंडरस्टूड? एंड देन minus 49 plus minus we get the what? Sorry, we get the 4a square. Now this is the answer of this questions. क्या क्या हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया? a स्क्वायर, यहाँ 5a स्क्वायर था, 5 में a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर निकाल दो, क्या बचेगा? 4a स्क्वायर. and why be using here the minus sign? because 5 is greater than, so 5 with the minus, so we'll be using the minus sign. Now fourth, this is a different type, keep in mind. Question number 4, and so what is the question number 4? Question number 4 is the evaluate for a is equal to minus 4. मतलब ये है यहां कि हम इस इक्वेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो आपके पास ये वैल्यू रहेगी ना, दिस वन, आप इसको क्या करोगे? इसकी जगह उस एक्सप्रेशन में आप उसको पुट करोगे. बात समझ में? अब इस एक्सप्रेशन में a कहां है? a is here. a is here means 6 and a. how we can join both? कैसे ज्वाइन हो सकते हैं दोनों? ये ज्वाइन है किससे? एक मल्टीप्लीकेशन से. आपको पता है टर्म्स और कांस्टेंट कैसे ज्वाइन होते हैं? टर्म और कांस्टेंट ज्वाइन होते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट कैसे ज्वाइन होते हैं? बाई मल्टीप्लाई, और फिर बाई डिवीजन. ठीक है? अब मतलब ये हुआ आपको a की वैल्यू यहां रखनी है, तो a क्या हुआ? 6 मल्टीप्लाई बाई a प्लस 14. ओके, नाउ यू कैन राइट द 6 मल्टीप्लाई बाई minus 4 इज इन अ ब्रैकेट एंड प्लस 14. अंडरस्टूड? मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो कि वहां है क्या. आप कंफ्यूज होगे तो फिर नहीं कर पाओगे. 6 ब्रैकेट है, यू नो ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन. ओपन कर दो ब्रैकेट, 6 4 जा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 4 जा 24, और ये प्लस 14 है. आप इवैल्यूएट करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है इसमें. अब नाउ दिस इज द माइनस 24, दिस इज अ प्लस 14. बोथ साइन आर डिफरेंट. डिफरेंट साइन मीन्स सब्ट्रैक्शन. And when we subtract the minus 24 and 14, we get the 10. But what then? Minus 10. Why? Because 24 is greater. And 24 with the minus sign. Understood? Now second question of the 14.
फोर्थ क्वेश्चन सेकंड, ए क्यूब प्लस 2a² माइनस a प्लस 5. थोड़ा सा सोचोगे इसको. a क्यूब मीन्स, what is the meaning of a cube? Means a multiplied by how many times? 3 times. And what is the value are there given a? 4. Means जब आप 4 को 3 times multiply कर दोगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? 64. But was there minus? Means आपको ये मैंने बताया था कि किसी भी एक्सपोनेंट में अगर क्या है, पावर नेगेटिव, पावर ऑड है और उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, स्क्वायर की, वो भी नेगेटिव आएगी. ओके, कीप इन माइंड एंड पुट द वैल्यू हियर इज व्हाट इज ए वैल्यू हियर इज 4, देन 4 माइनस 4 क्यूब प्लस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर, 4 माइनस 4, देन माइनस 4 ए स्क्वायर एंड देन व्हाट इज द वैल्यू हियर, 4 माइनस 4 इन ब्रैकेट प्लस देन 5. अब ब्रैकेट मैंने क्यों यूज किया? You know, we not tried together two signs. Okay, so this is the bracket. So there are the bracket here. Open the squares, solve the square and cube and you get your answer easily. बहुत आराम से कैसे? देखो बच्चों, ये है क्या, -4 क्यूब. अब मैंने बताया -4 क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी. अब -4 क्यूब की वैल्यू भी -64 आएगी. ओके, अब ये क्या है, 4 स्क्वायर. और 4 स्क्वायर की वैल्यू क्या, आप फाइंड कर लो या फिर इसको यहां राइट करो, फिर आप मल्टीप्लाई करो. चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं हम लोग. यहां क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू. अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें ऐसे होगा कि आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे कर सकते हो. आपने क्या किया, -4 मल्टीप्लाई बाई -4, -4 होल स्क्वायर मीन्स -4 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स. ये इसका मतलब हुआ. अब जब आप इससे मल्टीप्लाई किया, क्या मिला, माइनस माइनस प्लस एंड देन 4 4 जा 16. ओके, नाउ देन हियर विल बी 16 एंड ओपन द ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस देन 4 प्लस 5. अंडरस्टूड. देन -64 प्लस 32, 16 टू जा ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, 16 टू जा 32 एंड देन 4 प्लस 5. अब आप चाहो तो जितने पॉजिटिव है उनको पहले ऐड कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट करो. एंड वेयर विच वन इज द पॉजिटिव आर देयर, सिर्फ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है. अंडरस्टूड. आपको पता है पहले क्या सॉल्व होता है, एडिशन. अगर आप सिंपलीफिकेशन रूल्स करोगे तो एडिशन होगा. दिस इज नॉट एडिशन, इसमें माइंड मत करना, ये एडिशन नहीं है. ये क्या है, नेगेटिव नंबर है. जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा. तो फर्स्टली you can solve these 3 terms, 32 plus 4 36 plus 5 41. okay, then -64 plus 41. बच्चों मैंने क्या किया, इसको ऐड कर लिया, आ गया 41. आफ्टर एडिंग वी गेट व्हाट, -64 plus 41. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो बिकॉज बोथ आर डिफरेंट साइन, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो होगा क्या, यहां 64, ये हो गया 3, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 विद साइन माइनस. देन आंसर विल बी -23. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 6D and this is also last question of the chapter 6. Today's chapter is finished and the given, what is given, अब थोड़ा चेंज होगा. यहां आपके पास सिर्फ एक वैल्यू थी, यहां इस क्वेश्चन में आपके पास 2 वेरिएबल्स की वैल्यू रहेंगी. m is equal to -2, n is equal to 6. How we can find? Easily we can find. So what is here? Here is क्वेश्चन कर रहा है कि आप m is equal to -2 लो, मीन्स m की जगह रिप्लेस करके m रिप्लेस बाई -2 n रिप्लेस बाई 6. मतलब n को रिप्लेस कर दो 6 से और m को रिप्लेस कर दो -2 से. मीन्स 2 -2 पावर प्लस 8 ब्रैकेट 6. यही हुआ. ओके, एंड यू नो 2 पावर 2 4 एंड नेगेटिव है, उसकी भी वैल्यू 4 हो जाएगी. सो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और 6 8 क्या हो जाएगा 48. अंडरस्टूड. एंड देन 8 प्लस 48 एंड नाउ आंसर विल बी 56. अंडरस्टूड.
हमने क्या किया, m और n की वैल्यू जब पुट की तो ये माइनस था, आपको मैं पहले बता चुका हूं, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा. So this was all about for today, and today's your homework HW from the composite mathematics. Ashant application, solve the exercise 6D, any 10 question, any 10 questions. Okay, this is your homework. So students, thank you and take care.